So carbocation we have studied. Like carbocation, there are carb anion as well. If this bond break unequally, okay, say we have another way. This is a carbon, this is also carbon. Take this example. So this is an acid, okay? And due to some reason or heating, carbon dioxide is evolved. Okay, carbon dioxide is evolved. It is CO2. Consider this. Okay, this CO2 is evolved. So what happened? This bond is still with the carbon, and that is the reason it carries a negative charge. So this is another possibility. This Sir, screen is not visible. no, not visible. Just a minute. अरे तो सांगायचं ना त्यावेळी शिकवले. दिसतंय का आता? Yes, sir. Yes. Okay. So this is carboxylic acid, and in the carboxylic acid, CO2 gas is evolved. What happened? This CH2, CH2, CH3, CH2 with carrying a negative charge on it. Okay. So this is called carb anion. If carbon carries positive charge, carbocation, carbon carries negative charge, carb anion. Very simple, na? No need to worry about this. Very simple concept. Now, the second thing is about stability. Stability of this thing. So this carbocation is stabilized by different factors like hyperconjugation, like inductive effect, electromeric effect, or might be sometime resonance. So these effects, okay, have plays very important role for not only to decide the stability but also to decide the product. Okay, in any chemical reaction. किसी भी chemical reaction में कौन सा product बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, that is decided by, okay, this factors, stability factors. तो कौन से फैक्टर बताए मैंने? चार फैक्टर है. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, देन दिस वन इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस. अब इसके बारे में पता है कि वो भी नहीं पता? अरे कुछ तो बोलो, जल्दी बोलो, अपने पास टाइम भी कम है. नहीं पता क्या? यू कैन से नो. No, sir. नहीं पता. ओके. सो आता सगळे मराठी वाले आहेत ना, कोणी हिंदी वाला नाही आहे? कोणी आहे का हिंदी वाला? म्हणजे मला एक्सप्लेन करताना लँग्वेज कुठली वापरायची कळेल. हा, बाकी काही नाही. ओके. सो से चलो विल टॉक इन हिंदी क्योंकि रिकॉर्डिंग भी करनी है, तो बाकी लोगों को भी हेल्प होगा. अगर ये कार्बोकैटायन हो या कार्ब एनायन, भाई कंडीशन क्या है कि दिस कार्बन वांट्स इलेक्ट्रॉन. व्हाई? बिकॉज इट इज डिफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन. एवरी बॉन्ड कैरीज 2 इलेक्ट्रॉन. This bond carry 2 electron, this bond also carry 2 electron, this bond also carry 2 electron, but 2 2 to 6. And to complete stability, or can say to have stability, 8 electrons are required. तो यहाँ पे दो 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 6 इलेक्ट्रॉन है, बाकी दो कहां से आएंगे? It means this carbon is electron deficient and requires electron. तो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कहां से आ सकते हैं? तो अलग अलग वेज है. ये कार्बन है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये देगा डेफिनेटली. तो यहां से भी एक डोनेशन हो सकता है. इलेक्ट्रॉन विल बी मूव फ्रॉम कार्बन टू कार्बन प्लस चार्ज, मतलब नॉर्मल कार्बन टू कार्बोकैटायन. दिस इज वन वे. ओके, दिस इज वन. ओके, एक सेकंड. नेक्स्ट वन. हाँ, सो
एक तरीका का इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ. ओके, so the flow of electron from one species, one group to another species is called as inductive effect. ओके, इसे हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं. तो इस केस में देखिए, कार्बन जो नॉर्मल कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज, इसको हम sp3 क्यों बोलेंगे? बिकॉज इट हैव 1 2 3 4 फोर वैलेंसीज. फोर वैलेंसीज मतलब 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन. सो दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज. This is sp3 hybridized, whereas this carbon is sp2 hybridized. Okay, so what is the difference between them? sp2 hybridized carbon is having more electronegativity. Write down somewhere the percentage s character determines the electronegativity. In short, percentage s character is equal to or directly proportional to electronegativity of the atom or element. Okay, what do you understand by percentage s character? Percentage s character means percentage s character is directly proportional to electronegativity. Okay, समझ रहा है तो बोलो हाँ. देखो, डिस्पाइट हम लोग मतलब वर्चुअली मिल रहे हैं ना, जूम मीटिंग है या फिर ऑनलाइन है, फिर भी इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा होना चाहिए. तो आपके इंटरेक्शन ही आपको हेल्प कर सकता है. अगर आप बात नहीं करोगे, आप मुझे बताओगे नहीं आपको क्या प्रॉब्लम है, तो फिर इस लेक्चर का कोई फायदा नहीं है इसे. ओके, तो बातें करते रहो, बोलते रहो. बात करने का मतलब है कि रिस्पॉन्ड करो. वरना बोलेंगे सर आपने बोला बात करो, तो बच्चा बोलेगा सर वो बताइए कैसे है ना. तो वो वाली बातें नहीं करनी, काम की बात करनी है. एस कैरेक्टर. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एस कैरेक्टर? दिख रहा है ना यहाँ पे, sp3 में s 25% है. देखिए 4 लोग हैं, 3 p ऑर्बिटल है और 1 s ऑर्बिटल, तो कितना हुआ कंट्रीब्यूशन? 25%. sp2 में 33%. सो s कैरेक्टर यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है. तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. तो जितना हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर ज्यादा होगा, उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी. गॉट इट? इसमें कोई दिक्कत किसी को? No, sir. गुड. इससे भी ज्यादा किसकी हो सकती है? ट्रिपल बॉन्ड अगर हो. ओके, sp, इसमें 50% होगा sp s कैरेक्टर. तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन टू sp कार्बन, ये फ्लो चलता रहता है. तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कार्बन से इलेक्ट्रॉन कहां पे जा रहे हैं? कार्बन प्लस की तरफ. तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट. कौन सा इफेक्ट है ये? इंडक्टिव इफेक्ट. ओके, मैं आपको कुछ नोट्स भी शेयर करूंगा जिसमें ये सारी बातें ऑलरेडी लिखी हुई है. तो एक इफेक्ट हुआ. सेकेंड इफेक्ट क्या है कि ये हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करता है. तो इसको समझने के लिए मैं इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को दूसरे पेज पे ले लेता हूं. ओके, अभी दिख रहा है, तो ये वाला हटा देते हैं, ये उसको बाजू में करेंगे. तो नाउ दिस कार्बन वांट्स इलेक्ट्रॉन, तो अनदर वे टू स्टेबलाइज दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन. तो ये हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन अपना बॉन्ड इस कार्बन और कार्बन के बीच में डोनेट कर देता है. जैसे ये बॉन्ड डोनेट करेगा, व्हाट हैपन? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा. कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना, और दिस गिव्स अब यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखेगा. देखें, ये हाइड्रोजन के पास क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन जो होगा, इट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, हाइड्रोजन के पास क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने अपना हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो बॉन्ड को डोनेट कर दिया. दिस हाइड्रोजन डोनेटेड दिस इलेक्ट्रॉन टू दिस कार्बन. इसलिए जो कोई इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिव होता है. सो ऑलरेडी ये कार्बन पॉजिटिव था, पॉजिटिव उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दिया, तो नेगेटिव होना चाहिए था. तो पॉजिटिव नेगेटिव बोल के क्या हुआ? न्यूट्रल. इसलिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है.
ओके, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि उसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसने अपना पॉजिटिव चार्ज इसको दिया, ऐसा बोल सकते हैं, राइट। तो दिस हाइड्रोजन कैरीज पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन इसी डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द ही रहेगा। ओके, in close vicinity of double bond. Why? Double bond is negative whereas hydrogen is positive. तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगा कि नहीं? थोड़ी देर में क्या होगा, थोड़ी देर बाद। ओके, एक्चुअली ये सब काफी शॉर्ट टाइम में हो रहा है। हमें आपको समझाने के लिए सब कुछ इतना टाइम लग रहा है, लेकिन बट ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये बातें हो रही। तो ये बॉन्ड जो वापस इस हाइड्रोजन को जाएगा, तो ये कार्बन वापस पॉजिटिव हो जाएगा ना। एट दैट सेम टाइम दूसरा वाला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन है ना, दिस हाइड्रोजन विल डोनेट इस इलेक्ट्रॉन, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ताकि इस कार्बन की वैलेंसी को हम मेंटेन करें, उसके इलेक्ट्रॉन की कमी को हम दूर कर पाए। तो जितनी बार ये बॉन्ड इस कार्बन तो जाएगा, उतनी बार ये कार्बन स्टेबल होगा। ओके, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज अ हाइपर कॉन्जुगेशन। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ में आ रहा है क्या? नहीं? यस सर। गुड। उसको मैं सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझा सकता हूँ कि मान लो हम लोग एक प्लान कर रहे हैं, हम ट्रिप पे जा रहे हैं। अभी आप लोगों का बीइंग अ टीचर, मैं लीडर हूँ। ओके, तो सब लोगों के लिए खाने पीने की चीजें हमने इकट्ठा की और एक बैग में रख दी है ना, बॉटल हो या फिर कुछ वेपर्स हमने रखे। अब वो बैग मेरे पास है। अब हम लोग जा रहे हैं, ओके, पहाड़ी चल रहे हैं। तो जब हम ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, चल रहे हैं, तो कुछ देर के बाद किसी को तो लगेगा भाई सर इतने देर से बैग उठा के चल रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा शेयर करें वेट को, कि नहीं? हाँ, क्या बोलोगे? नहीं नहीं सर, अच्छा है, सर को थोड़ा सा पनिशमेंट मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है ना? क्या है जानवी? ओके, नाइस सर। है ना? तो कोई तो बंदा होगा कि बोलेगा सर एक काम कीजिए सर, थोड़ी देर के लिए मुझे बैग दीजिए। तो क्या हुआ, जैसे उसने बैग का वेट उठाया तो मैं आई विल वेरी रिलैक्स। तो थोड़ी देर बाद किसी और बंदे ने बोला कि भाई मुझे दे दो, तो हर किसी को ये आधे आधे घंटे के लिए अगर कोई कैरी करे बैग, तो क्या होगा, सब स्टेबल हो जाएंगे ना, किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा ही इधर हो रहा है, कार्बन को स्टेबलाइज करने के लिए ये हाइड्रोजन थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसके बाद ये सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन देगा, फिर थर्ड वाला देगा। ओके, इस तरह से एवरीबडी वांट्स टू कंट्रीब्यूट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ their particular species। अपने आप के कंपाउंड को स्टेबलाइज करने के लिए ये बंदे सैक्रिफाइस कर रहे हैं। देखो, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन इज शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, so when alpha hydrogen involves is called as a hyper conjugation। okay, so जितने अल्फा हाइड्रोजन ना उतने ज्यादा स्टेबिलिटी। एंड इसके ऊपर क्वेश्चन आता है आपको, कुछ 3-4 स्ट्रक्चर दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि इसमें से बताइए कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। मैं आपको क्विकली अभी जो बातें बताई ना, उसकी पीडीएफ है, ये पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा क्योंकि नेट से ही निकाला है मैंने। तो इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन कैसे बना। सबसे पहला तो आयनाइजेशन, ये आई माइनस निकल गया, आई माइनस निकला तो यहाँ पे क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज, राइट। दूसरा एक केस है, यहाँ पे देखिए, ये दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ डाइअज़ोटाइजेशन। अगर आपको याद हो, किसी ने रिएक्शन किया है क्या, ये लैब में किया होगा डाइअज़ोटाइजेशन? एनीबॉडी, फार्मेसी वाले स्टूडेंट? डाइअज़ोटाइजेशन कितनी बार तो रिएक्शन आपको सिलेबस में भी है, मैंने भी बच्चों को कराया है प्रैक्टिकल, याद है कि नहीं? यस सर। याद है, ओके। तो ये देखो, नाइट्रोजन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये वाला जो बॉन्ड है ना वो नाइट्रोजन के पास जाएगा, तो इस कार्बन के पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। देखो, तो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग कंडीशंस जिसमें कार्बोकैटायन बनेगा। ओके, नेक्स्ट इज प्रोटोनेशन। ये मार्कोनिकॉफ रूल का है एग्जांपल, विल टेक मार्कोनिकॉफ रूल एज वेल ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्कोनिकॉफ रूल होता है। देखो भाई, आपको ट्री भी बताऊंगा, दुनिया में जितने भी एडिशन रिएक्शन होगी किधर भी, नॉट ओनली इन फार्मेसी लेवल, आप पोस्ट ग्रेजुएशन पे जाओ, पीएचडी पे जाओ, कितना भी हाई लेवल का केमिस्ट्री पढ़ो, एडिशन रिएक्शन ऑलवेज हैविंग ओनली टू पॉसिबिलिटीज, वन मार्कोनिकॉफ रूल और दूसरा एंटी मार्कोनिकॉफ। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पे ये H प्लस को बैलेंस करने के लिए बॉन्ड इसको दिया गया। जैसे ही इस कार्बन ने अपना बॉन्ड इसको दिया, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव बनता है, तो क्या हुआ, वंस अगेन कार्बोकैटायन।
तो आपको ये समझना है कि अलग अलग जगह पे जहां पे डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। यहाँ पे देखो ये OH है, OH इस H के साथ जा रहा है तो H2O बनेगा। यहाँ पे क्या होगा फिर, दिस कार्बन कैरीज पॉजिटिव चार्ज। देखो ओके, ये ऑलरेडी स्ट्रक्चर मैंने आपको डिस्कस किया था, 3 बॉन्ड है और ये एम्प्टी ऑर्बिटल। ओके, बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 120, ऑब्वियसली प्लानर ज्योमेट्री, sp2 इज हैविंग अ प्लानर ज्योमेट्री। अभी भी इन बिटवीन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आस्क। ओके, ये ओपन सेशन है, आप जितना चाहे उतना बात कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। कंसेप्ट के बारे में जितना आपको बोलना है बात कीजिए, क्वेश्चन पूछिए। स्टेबिलिटी के लिए देखो ये इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, ये 2 बातें मैंने आपको बताई, इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस अभी नहीं बताया क्योंकि उसका उस तरह का एग्जांपल हमने लिया नहीं। विल टेक वन एग्जांपल एज वेल, जहां पे आपको मैं ये बता पाऊं कि रेजोनेंस की वजह से कार्बोकैटायन स्टेबल कैसे हो सकता है। ओके, सो विल टेक वन एग्जांपल हियर। आपने एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में सुना है कि नहीं? Yes, sir. सुना है ना? ओके, सो दिस इज, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये साइक्लोहेप्टेन की तरह स्ट्रक्चर है, 7 कार्बन है इसमें। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं। क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है क्या? इसके लिए भी मैं अलग से सेशन लेने वाला हूँ। आपको जो लिस्ट मिला है उसमें मैंने एरोमेटिक के लिए भी खास सेशन रखा हुआ है। ओके, तो हम हर रोज एक एक लेक्चर लेंगे, कल भी हमारा लेक्चर होगा, मंडे को भी। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है क्या, कोई बता सकता है? किसी को पता है Yes. कंसेप्ट, एरोमेटिक है? किसने बताया? कोई बात नहीं, गलत Yes, sir. गलत हो या नहीं हो उसके बारे में बात नहीं हो रही है। आपको कितना कंसेप्ट पता है उसके बारे में बात होगी। अगर ड्रॉबैक्स है, कुछ आपको नहीं आता तो मैं बताऊंगा ना। ओके, पल्लवी, नितेश, बात करनी है बेटा, ऐसा चुपचाप बैठोगे तो नहीं सीख पाओगे। तो दिस कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। व्हाई? एरोमेटिसिटी के 4 पॉइंट्स होते हैं, 4 कंसेप्ट्स। ओके, उसमें से 4 का मतलब क्या हुआ, एक तो साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, कार्बन शुड बी, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। सेकेंड, कंपाउंड शुड हैव प्लानर ज्योमेट्री। अब देखो ये एक देखो, कार्बन एक पीछे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है, तो इज नॉट अ प्लेन, ये प्लेन में नहीं है। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, एक कंपाउंड ऑरोमेटिक नहीं है। अगर ये हाइड्रोजन को हम हटा दे तो, ये हाइड्रोजन को हम हटा दे विथ माइनस चार्ज, ये बॉन्ड को भी हटा दे, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। अब ये कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल है। तो ये पॉजिटिव चार्ज कितना मायने करता है, बहुत मायने करता है भाई, इतना मायने करता है कि इसके वजह से पूरा का पूरा कंपाउंड ही स्टेबल हो गया। ओके, दिस इज कॉल्ड एज ट्रोपोनियम आयन। ट्रोपोनियम आयन है उसका नाम, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से बहुत ही बड़ा चेंज हुआ। ये पूरा का पूरा कंपाउंड एकदम सॉलिड, एकदम स्टेबल हो गया। व्हाई? कि अभी ये कंपाउंड एरोमेटिक बन गया है। ओके, एरोमेटिसिटी का मैं अलग से सेशन लेने वाला हूं, बट मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता था यहाँ पे कि रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे ये कार्बन क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। देखो ये वाला बॉन्ड जो है वो रेजोनेंस होकर इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर है, ये घूमता रहेगा। उसकी वजह से एक कार्बन को स्टेबिलिटी मिली क्या, डेफिनेटली। देखो ना, ये बॉन्ड इधर जाके इस कार्बन को प्लस चार्ज को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, आगे आएगा इस तरफ, ये हमेशा घूमता घूमता रहेगा। नेक्स्ट, जैसे ही ये वाला कार्बन यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए इधर से बॉन्ड आ रहा है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ से बॉन्ड आ रहा है। तो आप किधर भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप करो वहां पे उसको हेल्प मिलेगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को कम किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये कंपाउंड काफी स्टेबल हो गया, किसी को भी तकलीफ नहीं हो रही है, हर एवरी पॉजिटिव चार्ज गेटिंग इलेक्ट्रॉन। तो रेजोनेंस की वजह से भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हो सकती है। गॉट इट? समझ में आया? ये समझ में आया कि और? Yes. Yes, sir. Yes. यस, Yes, sir. गुड। तो हमने देखा कि हाउ वी कैन स्टेबलाइज कार्बोकैटायन बाय हाइपरकॉन्जुगेशन, बाय इंडक्टिव इफेक्ट एंड बाय रेजोनेंस। ओके, क्लियर? गुड। नेक्स्ट, ये देखिए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। तो
यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे दूसरा, तीसरा, 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे ओनली 1 कार्बन, यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है, 0 डिग्री। तो मिथाइल इज हैविंग ए 0 डिग्री, ओके। इथाइल कार्बोकैटायन इज हैविंग 1 डिग्री, प्रोपाइल कार्बोकैटायन, आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन हैविंग 2 डिग्री, और ये 3 डिग्री। डिग्री कैसे पता करते बताऊं? सिंपल वर्ड, जितने कार्बन अटैच उतनी डिग्री। अब इस कार्बोकैटायन को कितने कार्बन अटैच्ड है? पहला वाला, ये मिथिल वाला, नो कार्बन अटैच। कोई और एक्स्ट्रा कार्बन है क्या? नो, 0 डिग्री, नो कार्बन, 0 डिग्री। इसमें देखो, इस कार्बोकैटायन को 1 कार्बन इज अटैच्ड, तो इट इज 1 डिग्री। This carbocation carries 2 carbons, so 2 degree secondary. This carbocation containing 3 carbons, so 3 degree. Got it? Okay? तो जितने ज्यादा कार्बन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, क्योंकि उतने लोग उसको हेल्प कर रहे हैं। देखो, यहां से भी हेल्प हो रहा है, यहां से भी हेल्प, यहां से भी हेल्प हो रहा है, 3 जगह से कार्बन इज गेटिंग हेल्प, सो ज्यादा स्टेबिलिटी है। यहाँ पे 2 ही जगह से हेल्प है, यहाँ पे एक ही जगह से, यहाँ पे किसी का हेल्प नहीं है, तो स्टेबिलिटी कम 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 होते जा रहा है। तो मिथाइल कार्बोकैटायन इज लिस्ट स्टेबल, whereas tertiary butyl carbocation is much more stable. Got it बेटा? Okay. इंडक्टिव इफेक्ट का समझ में आया? एवरी कार्बन इज गोइंग टू गिव इलेक्ट्रॉन टू प्लस चार्ज। एवरीबॉडी क्लियर है क्या? Yes, sir. गुड। ओके, यहाँ पे भी रेजोनेंस है, देखो ये प्लस चार्ज है और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज, फिर ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, फिर यहाँ पे प्लस चार्ज, तो एक दूसरे को हेल्प करते जा रही है। ओके, इधर भी देखो, ये प्राइमरी वाला है, ये देखो सेकेंडरी, इधर से उसको हेल्प आएगा, ओके, फिर इधर से इसको हेल्प आएगा, तो दोनों तरफ से इस कार्बोकैटायन को आपको हेल्प मिलेगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ओके, और किसी एक कंपाउंड में सिर्फ एक तरह का ही और क्या बोलते हैं इफेक्ट लगेगा ऐसा कुछ नहीं है, मल्टीपल इफेक्ट भी लग सकते हैं। तो इन दिस केस सेकेंडरी कार्बोकैटायन, यहां से इस कार्बन का इंडक्टिव इफेक्ट भी है और यहाँ का रेजोनेंस भी है, दोनों इफेक्ट लग सकते हैं। तो दिस कार्बोकैटायन इज मच मोर स्टेबल। देखो, एक से ज्यादा इफेक्ट भी लग सकते हैं। नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखो बेटा, ये कार्बन को इधर से भी हेल्प आ रहा है, इधर से भी हेल्प आ रहा है, तो जितने ज्यादा हेल्प होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ओके, और कुछ, हाँ, यहाँ पे अलॉन्ग विथ इंडक्टिव इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी है, क्योंकि दिस कार्बोकैटायन के बाजू का कार्बन अल्फा होता है, और अल्फा पे क्या है? देर आर 3 हाइड्रोजन। कुछ नहीं है मतलब क्या, हाइड्रोजन तो होंगे इधर। ओके, 3 हाइड्रोजन हेल्पिंग स्टेबलाइज दिस कार्बोकैटायन, तो इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, और रेजोनेंस भी। और इन सबको अगर मैं सम करूं तो आपको मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है ना, सबसे ज्यादा पावरफुल हेल्प होता है एरोमेटिक कंपाउंड का। तो ऑर्डर ऑफ पावर में लिखिए, ऑर्डर में लिखिए कि एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिसिटी और रेजोनेंस इज हैविंग अ मच मोर पावर। रेजोनेंस is much more powerful than hyperconjugation. Hyperconjugation is much more powerful than inductive effect. Okay, and inductive effect is much more powerful than electromeric effect. Okay, so मैं आता है, दिस इज ऑर्डर, ये ऑर्डर हमेशा ध्यान रखना, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ओके, रेजोनेंस, हाइपरकॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन? एक मिनट, स्पेलिंग रेजोनेंस, NANC, रेजोनेंस। ओके, रेजोनेंस, हाइपरकॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। समझ में आ रहा है? ये सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखना, जहां पे रेजोनेंस ज्यादा है ना, वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ओके, कंपेयर टू हाइपरकॉन्जुगेशन, कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, कंपेयर टू इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ओके, कुछ एग्जांपल भी आपको दे देता हूं। से अभी आपके सामने जो था ना, 3 डिफरेंट डिफरेंट कार्बोकैटायंस थे, एक था प्राइमरी कार्बोकैटायन, एक था सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ओके, तो इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है आपका टर्शियरी कार्बोकैटायन, वेयर दिस कार्बन इज, this is CS3, this is CS3, this is CS3, and this carbon is having positive charge। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। इसको मैं कलर भी दे देता हूँ थोड़ा सा अलग, ताकि यू विल गेट मोर आइडिया। ये रेड कलर दिया,
दिस इज अ टर्शियरी वन। क्यों बेटा? क्योंकि इसको 3 कार्बन अटैच है, राइट? दिख रहा है ना? अभी यहाँ पे हाइड्रोजन दे देते हैं। अब ये क्या हो गया? सेकेंडरी। इसको उसके 2 हटा देते हैं कार्बन, तो ये हो गया प्राइमरी। ओके, और ये आखिरी वाला, इसके तीनों को हम हटा दें। ओके, तो यहाँ पे ये 0 डिग्री, 4 अलग अलग कार्बोकैटायंस है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी बताइए? चलो क्विकली फास्ट, किसकी होगी ज्यादा स्टेबिलिटी? चलो क्विक। फर्स्ट। फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर टर्शियरी। क्यों बेटा? बिकॉज कार्बन प्रेजेंट। 4 4 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, बट साथ में क्या है? मतलब इसको जो अल्फा 3 कार्बन होने के साथ साथ हाइपरकॉन्जुगेट इफेक्ट भी लग रहा है। ओके, और इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है। अब इसी के साथ, इसके साथ अगर हम लोग कंपेयर करें बेंजीन, दिस इज बेंजीन, दिस इज CH2, और उसको प्लस चार्ज देते हैं, CH2 प्लस चार्ज। दिस इज अ बेंजील कार्बोकैटायन। इसको हम लोग ग्रीन कलर देते हैं ना, ये देखो। सो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि दिस इज ऑप्शन नंबर ए, सो ऑप्शन नंबर ए। ओके, दिस इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, दिस इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, और दिस इज ऑप्शन नंबर डी। अलग अलग 4 कलर मैंने जानबूझ के अलग अलग कलर में आपको बताया। तो ये 4 ऑप्शंस है, और आपको पूछा गया इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा बताइए? कौन स्टेबल होगा? रेजोनेंस, हाइपरकॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, ये थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा एक एक चीज में इसमें ऐड कर दूं। ये CH3 है, ये CH2, और इसको और एक कार्बन लगा देते हैं। यहाँ पे कितने कौन से इफेक्ट कितनी कितनी बार लग रहा है ना, थोड़ा उसका हिसाब कर ना, उसका हिसाब लगा लेते हैं। यहाँ पे 3 कार्बन है, तो 3 3 इंडक्टिव इफेक्ट, 3 प्लस आई इफेक्ट, 3 प्लस आई इफेक्ट होंगे। क्लियर हो रहा है क्या? देखो 3 प्लस आई इफेक्ट। और हाइड्रोजन कितने बेटा? अल्फा हाइड्रोजन कितने गिनो? 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, और वो कौन सा इफेक्ट है क्या? नहीं है, अभी तो इतना ही है। इस केस में क्या है? इस केस में 2 इंडक्टिव इफेक्ट, 2 प्लस 2 प्लस आई इफेक्ट, और 6 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। देखना यहाँ पे ज्यादा हेल्प है, 3 इंडक्टिव इफेक्ट और 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने होंगे? यहाँ पे 1 2 3, 3 इंडक्टिव इफेक्ट है, 3 इंडक्टिव इफेक्ट। दिख रहा है क्या? 3 प्लस आई इफेक्ट। और हाइपर कॉन्जुगेशन कितना होगा बेटा? यहाँ पे 2 3 कार्बन, यहाँ पे 3 3 हाइड्रोजन 6, और यहाँ पे 2 7 8, 8 अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन। ओके, और इस केस में क्या होगा? इस केस में ओनली रेजोनेंस, ओनली रेजोनेंस इफेक्ट है, बाकी कोई इफेक्ट नहीं है। बाकी इंडक्टिव इफेक्ट होगा, एक इंडक्टिव इफेक्ट होगा, रेजोनेंस इफेक्ट है, और एक इंडक्टिव इफेक्ट है। और रेजोनेंस इफेक्ट इज डेफिनेटली बेटर देन हाइपर कॉन्जुगेशन देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो होता क्या है कि यहाँ पे रेजोनेंस अकेला है, ओनली वन रेजोनेंस इफेक्ट बेंजीन रिंग का। यहाँ पे 3 अल्फा 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, सॉरी 9 अल्फा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर अलॉन्ग विथ 3 इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर कंपेयर करेंगे तो ना, ये सेकेंडरी और ये कार्बोकैटायन से डेफिनेटली बेंजीन ज्यादा है, बेंजीन कार्बोकैटायन। बट यहाँ पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है, क्योंकि 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर एंड 3 इंडक्टिव
स्ट्रक्चर्स की वजह से क्या होगा, इसका थोड़ा सा पावर ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू बेंजील कार्बोकैटायंस, एंड दैट इज रीजन यहाँ पे आंसर आएगा टर्शियरी। बट बाकी लोगों से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, बाकी लोगों से कंपेयर करेंगे तो दिस कार्बोकैटायन इज मच मोर स्टेबल। ऐसे हमें सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं, ऐसे अलग अलग एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं। ओके, और भी आपको मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है लिखे हुए, आगे चलते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ना सिर्फ एक एस्पेक्ट से नहीं है, और भी रेजोनेंस का भी एस्पेक्ट मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखिए, यू कैन चेक, ये जो दिख रहा है ना प्लस चार्ज है, और 3 अलग अलग रेजोनेंस है, ये बेंजीन रिंग, ये बेंजीन बेंजीन, ये कितना स्टेबल, वेरी स्टेबल। तो हर ब्रैकेट ये 3 इसकी वजह से, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड, यहाँ पे 3। ओके, तो टोटल इसके 9 होंगे, 9 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। ओके, तो टोटल 10 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स। 10 कैसे, ये खुद का अभी अभी जो बना हुआ एक, और बाकी के 9, ऐसे कुल मिला के 10 स्ट्रक्चर बनेंगे। 10 स्ट्रक्चर्स, तो कितनी स्टेबिलिटी, 10 टाइम्स स्टेबिलिटी। तो टर्शरी बेंजील कार्बोकैटायन इज वेरी स्टेबल। ओके, यहाँ पे 2 ही बनेंगे, ये 2 है, तो कितने होंगे टोटल, अभी खुद का एक और 3 3 6, टोटल 6 प्लस 1 6, 7 स्ट्रक्चर बनेंगे, है ना। तो समझ रहे हो, तो सेकेंडरी इससे भी ज्यादा टर्शरी, तो जितना ज्यादा हेल्प उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। और कुछ एग्जांपल भी उन्होंने दिए हुए, तो आई विल शो दिस वन। हाँ, देखो, सिर्फ हमेशा टर्शरी स्टेबल होगा ऐसा नहीं है। देखो इस केस में सेकेंडरी है और यहाँ पे प्राइमरी, तो प्राइमरी ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी अटैच्ड। हर बार हेल्प करने वाले लोग होंगे आसपास ऐसा नहीं, कभी कभी हेल्प ना करने वाले या तो फिर काम बिगाड़ने वाले लोग भी होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, अब कैसे पता चलेगा कि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कौन बताएगा। धीरे धीरे लोक संख्या कम हो रही है। हाँ? बात समझ में नहीं आ रही क्या, नितेश, पल्लवी, वैष्णवी? हेलो। यस सर। यहाँ पे एक कार्बोकैटायन प्राइमरी स्टेट पे है और यहाँ पे सेकेंडरी पे, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, प्राइमरी की सेकेंडरी? इतना बोल के काम खत्म नहीं होता कि भाई ये प्राइमरी है तो ज्यादा कम स्टेबल होगा, सेकेंडरी है तो ज्यादा स्टेबल होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि इसको कौन अटैच है वो भी देखना पड़ता है। देखो ये ग्रुप देखो, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो ये स्टेबिलिटी और कम कर देगा। अभी भी ऑलरेडी प्लस चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, और उससे और इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो क्या होगा, कोई ऑलरेडी गरीब है बंदा, ओके, उसको खाना नहीं मिला बहुत दिनों से, कहीं से गलती से खाना मिल गया और कोई उसको चुरा के ले गया खाना, तो क्या हुआ, स्टेबिलिटी बढ़ी कि कम हुई? कम कम होगी। कम होगी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कम है और वो भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले लोग हैं, तो ये क्या होगा, स्टेबिलिटी और कम हो जाएगा। सो नॉट ऑलवेज द टर्शियरी कार्बोकैटायन विल बी स्टेबल, वी हैव टू चेक अदर पैरामीटर्स, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, हाइपर कॉन्जुगेशन लग सकता है क्या, रेजोनेंस लग सकता है क्या, इंडक्टिव इफेक्ट, ये सारे एस्पेक्ट पता करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि दिस कंपाउंड इज स्टेबल और नॉट। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं। मार्कोनिकॉफ रूल में आपको रिएक्शन में समझाऊंगा, बट आई वांट दिस टू यू टू आंसर। ये आंसर कीजिए, चलिए 2 मिनट बचे हैं, फटाफट आंसर दीजिए। नेक्स्ट फिर से ज्वाइन करना है, हम कार्बोकैटायन की बात करेंगे बाद में। पहला आंसर बताइए, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज, क्या होगा? sp2। sp2, क्या बात है, परफेक्ट, पूरी आंसर दिले। अगर क्लास चालू मतलब ऑफलाइन होता तो डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ अवार्ड दे देता। ओके, गुड गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट वन, द शेप ऑफ कार्बोकैटायन इज, फास्ट, क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लानर, गुड। द फॉर्मल चार्ज एट कार्बोकैटायन इज इक्वल टू, कितना चार्ज होता है कार्बोकैटायन पे, माइनस प्लस? अरे कार्बोकैटायन पे प्लस। प्लस होता है, गुड। अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। देखो बेंजाइल कार्बोकैटायन है, ओके, बेंजाइल, उसके बाद में टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, बेंजाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, बेंजाइल। ओके,
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और बेंजाइल। सबसे ज्यादा क्या होगा स्टेबल? सबसे ज्यादा क्या होगा? बेंजाइल स्टेबल होगा, बाद में टर्शियरी, बाद में सेकेंडरी, बाद में प्राइमरी। ऑप्शन ए इज राइट। ओके। और सिर्फ एक्सेप्शन एक था कि अगर टर्शियरी मिथाइल ग्रुप हो तो भी थोड़ा चेंज होता है। वाई? टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप में तीनों मिथाइल ग्रुप है और तीनों के पास अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बट इन जनरल दिस इज द राइट सीक्वेंस। जनरली ये सब कुछ सही है। ठीक है। विच कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल? चलिए ये आपके इधर पहला ऑप्शन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, चार ऑप्शन दिए। चार में से सबसे स्टेबल कौन सा?